So, welcome everyone. Today I'll be talking about the most basic thing that we study when we start studying science, when we start studying biology, and that is cell. And what is cell? And मतलब सेल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज्यादा आस्क पूछे जाते हैं हर ज्यादा जगह, जैसे कि कोई कंपटीशन एग्जाम हो गया, या फिर हमारे बेसिक एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो गए, डीयू के हो गए, या फिर अब किसी को यूजी या पीजी परस्यू करना है. So cell is the very important chapter, and let's get started. This I have taken the concept from NCRT because it is one of the most famous book, which is also referred in UPSC preparation as well as general, for the general knowledge purpose. So let's get started with this. So what is actually cell and what is it all about? So for the UPSC point of view, we should always take into consideration G.N. Ramachandran, an outstanding figure in the field of protein. If I spotlight this, then we'll come to know. So I think I'm much clear with this. So the name of the scientist is not asked when you are just appearing for class 10th examination or class 9th or junior level examination, but still the name of the scientist is asked in the competitive examinations, like if you are dealing with MNS, if you are dealing with CDS, these are the things which are actually asked. Now, G.N. Ramachandran, an outstanding figure in the field of protein structure, was the founder of the Madras School of Conformational Analysis of Biopolymers. So, G.N. Ramachandran, you have to remember the name because he performed a very crucial role in the discovery of various things in the field of science. So we can read this later, but we'll first start with what is actually cell, and we'll just go to that point because we have to get the basic knowledge about it. Now, what is actually cell? आपने बहुत ज़्यादा questions में देखा होगा कि पूछा जाता है कि what is cell, and there are 4 options. So the cell is the unit of life, the basic unit of life in all the living organisms. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें इसको समझना है तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमने एक घर बनाया, हमने एक घर बनाया, तो जो पहली ईंट होती है, यानी कि पहला जो ब्रिक हम उसमें रखते हैं, द फर्स्ट ब्रिक वी टेक in the process of building a house is actually what is a cell. That is the first basic unit. Unit means one. हम unit की जब बात करते हैं तो यहाँ पे हम one की बात कर रहे हैं. यहाँ पे unit का मतलब होता है one, single. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा यूनिसेलुलर, multicellular. The word uni itself means one. The unit of life, यानी कि एक ऐसा यूनिट लाइफ का जो कि आगे एक ऑर्गेनिज्म को बिल्ड करता है. जब हम आसपास देखते हैं, I'll just quickly read this paragraph, that when you look around you see both living and non-living things. You must have wondered and asked yourself, what is that makes an organism living, or what is that an inanimate thing does not have which a living thing has. हमें हमेशा एक क्वेश्चन अपने दिमाग में रहता है कि what is the difference between living and non-living organisms. Coming to the point, we have studied about this कि living organisms कैसे होते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या डिफर करते हैं किस चीज में, और लिविंग ऑर्गेनिज्म किस चीज में डिफर करते हैं. The answer is to this is the presence of the basic unit of life. And what is this basic unit of life? This is actually cell. So it is cell, it is the basic unit of life. Unit means one. And you have to remember the example of a house, that is a building in which we require only one single brick to construct the remaining house. हमें एक ब्रिक की जरूरत जो होती है जिससे हम पूरा घर आगे बिल्डअप करते हैं, वो एक ब्रिक सेल होती है उस बिल्डिंग में. ऐसे ही हमारी बॉडी में, हमारे एक ऑर्गेनिज्म में, किसी भी ऑर्गेनिज्म में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बींग्स, आई एम टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्टिंग फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ. तो हमारी
एक जो सेल होती है that is responsible for creating other forms, like we have cell, we form it, we later see the development of tissues, we see the development of organs, then we see the development of organ system, and then we see the development of an organism, that is cell, that is tissue, that is organ system, organ system, and then it is about organism. Now we'll just have quick overview that what is cell. If we talk about unicellular organisms which are capable of independent existence and performing the essential functions of life, anything less than a complete structure of a cell does not ensure independent living. Hence, cell is the fundamental structural and the fundamental unit of all living organisms. अब फॉर एग्जाम्पल मैंने बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल दे ही दिया है एक बिल्डिंग का। बिल्डिंग में एक जो ब्रिक होती है वो हमारा सेल है। तो जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है या फिर एक मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, वो एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का मतलब कि इंडिविजुअली एग्जिस्ट करना या इकलौता एग्जिस्ट करना, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के केपेबल होते हैं। अब क्वेश्चन दिमाग में ये जरूर होगा कैसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म या मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कैसे शो कर लेते हैं। सो बेसिकली इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऐसे शो करते हैं कि हमारा एक ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जाम्पल आई एम निष्ठा खन्ना, मैं एक ऑर्गेनिज्म हूँ, मैं इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरे हाथ को क्या फंक्शन करना है, मुझे पता है मेरे पैर को क्या फंक्शन करना है। माई ऑर्गन्स inside my body actually knows what function it has to perform, तो उनको अंदाजा है कि उनको क्या फंक्शन करना है। सो आई एम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टिंग क्योंकि हम एक इंडिविजुअल की तरह एग्जिस्ट कर रहे हैं। सिमिलरली कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है उसके पास उसके बेसिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए चीजें होती हैं और वो चीजें एक्चुअली ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करती है जो कि उनके अंदर ऑर्गन्स होती है। टू सम अप, इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए आप ऐसे कह सकते हैं कि हमारा ब्रेन का फंक्शन है मेमोरी स्टोर करना या फिर कोऑर्डिनेशन के लिए। तो ये सब फंक्शन ब्रेन परफॉर्म करता है जो हमारा पैर परफॉर्म नहीं कर सकता, बट माई ब्रेन नोज दैट इट हैज टू डू दिस फंक्शन। सिमिलरली यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में भी स्पेसिफिक ऑर्गन्स होती हैं, ऑर्गन सिस्टम होता है या फिर एक मैकेनिज्म होगा जिससे कि वो अपने बॉडीली फंक्शंस को, मेटाबॉलिज्म को बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं। They perform the essential functions of life in a very beautiful manner. And anything which is less than a complete structure of cell, जो सेल एक सेल है अगर वो पूरा फॉर्म ही नहीं हुआ है, वो पूरा बना ही नहीं, तो क्या वो आगे प्रोसीड करेगा कि वो एक ऑर्गेनिज्म बना ले? नहीं बन सकता वो एक ऑर्गेनिज्म। सेल जब तक कि एक फुल्ली मेच्योर्ड सेल नहीं होगा, एक सेल जो कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस और एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ परफॉर्म नहीं कर सकता, वो आगे प्रोसीड नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इफ यू टेक एन एग, तो एग को जब हम एग से कोई एक ऑर्गेनिज्म बाहर निकलता है तो उसको एक पर्टिकुलर टाइम चाहिए होता है, एक जेस्टेशन पीरियड चाहिए होता है जिससे वो एक फुल्ली मेच्योर सेल बन सकता है। जब वो फुल्ली मेच्योर सेल बन जाता है तब वो आगे प्रोसीड करता है। सिमिलरली जो हमारा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है यानी कि जो सेल है हमारा, वो आगे तभी वो पूरी बिल्डिंग बनाएगा जब वो एक बिल्डिंग में एक ब्रिक बहुत ज्यादा मजबूत है। हम उसमें कोई भी आधी ब्रिक तो नहीं लगाते। जब हम बिल्डिंग बनाते हैं हम ईंट रखते हैं तो ईंट एक पूरी अच्छी मजबूत ईंट रखते हैं, ये थोड़ी ना कि हम आधी काट के रख देते हैं, ये हम नहीं करते। तो इसीलिए जो सेल होता है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए और वो एक बहुत अच्छे तरीके से फॉर्म्ड होना चाहिए सो दैट इट कैन further proceed into an individual. Hence, cell is the fundamental structural and fundamental unit of life. The structural and functional unit of life is known as cell. एक precise definition है जो कि बहुत ज़्यादा important है, जो कि if 1 mark question में आता है, you have to write it. What is cell? It is a structural and functional unit of life. And you don't have to mug up की structural functional, समझिए कि structural क्यों, क्योंकि वो एक मतलब
प्रॉपर स्ट्रक्चर परफॉर्म कर रहा है। और फंक्शनल, क्योंकि सेल जब एक ऑर्गेनिज्म बना देता है, वो एक टिश्यू बनाता है, वो ऑर्गन बनाता है, वो ऑर्गन सिस्टम बनाता है, इससे वो फर्दर हमारा एनालाइज करता है कि वो एक ऑर्गेनिज्म कितनी अच्छी तरीके से फॉर्म हो गया, और वो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं जो उसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गन सिस्टम। नाउ दिस इज वेरी मच आस्क्ड दैट हु first saw and described a live cell. So Antony von Leeuwenhoek first saw and described the live cell. Another scientist is, I think this is much clear. Another scientist, name of the scientist is Robert Brown, later discovered the nucleus, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्लास 8th में भी बताया जाता है। रॉबर्ट ब्राउन ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। उन्होंने एक अनियन पील ली थी, अनियन पील को अंडर 40x या 10x माइक्रोस्कोप में देखा, स्टेन किया पहले, उसको प्रॉपर एक स्टेनिंग कल्चर में परफॉर्म किया, उसमें सैफ्रनिन डाला, उसको उसकी पील कैसे ली कि आपको एक जरा सी पील ली, उसको हमने रखा और फिर उसको जो है उसमें स्टेन डाला हमने सैफ्रनिन, डिपेंड करता है कि आप कौन सा स्टेन यूज कर रहे हो, सो दैट इट कैन एब्जॉर्ब द कलर, क्योंकि न्यूक्लियस जो होता है, जो डीएनए आरएनए होता है, वो कुछ टाइप के स्टेन्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो वो स्टेन उसने एब्जॉर्ब कर लिया तो वो चीज हाईलाइटेड दिखती है, इसीलिए हम स्टेन यूज भी कर रहे हैं। तो अब हमने स्टेन ले लिया, हमने उसके ऊपर कवर स्लिप रखा, और कवर स्लिप रखने के बाद हमने उसको माइक्रोस्कोप में देखा। जब माइक्रोस्कोप में रॉबर्ट ब्राउन जी ने देखा तो उन्होंने पाया कि द न्यूक्लियस एज वेल एज द रिमेनिंग स्ट्रक्चर वो एक कोई सेलुलर कॉम्पोजिशन शो कर रहा है। तो उन्होंने न्यूक्लियस को बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर लिया, क्योंकि वो एक प्रॉपर स्टेनिंग पार्ट ले चुका था, वो एक डार्क ब्राउन डार्क पिंक स्ट्रक्चर की तरह दिख रहा था। तो उनको पता चल गया कि ये न्यूक्लियस है। जो रिमेनिंग चीजें थी, एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, एक थे रॉबर्ट ब्राउन। जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने क्या बताया था कि जो सेल का जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली हमारा जो बी का जो हाउस होता है, यानी कि हनी बी का कोम जो होता है, वो जो सेलुलर हेक्सागोन शेप में होता है। जस्ट ड्रॉ द हेक्सागोनल शेप, जैसा कि उन्होंने बताया था। so I think if there is an option over here, yes there is option of drawing. so ये एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर था ऐसे करके। अब ये जो एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये ऐसे स्ट्रक्चर मतलब बेंजीन रिंग जैसे होती है वैसे ही अरेंज्ड होता है, और वो एक पूरा सेलुलर पैरेटस शो कर रहा था। उन्होंने एक स्ट्रक्चर को नाम दिया था कि ये एक सेल है। पहले साइंटिस्ट है हमारे एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक, जिन्होंने फर्स्ट देखा था और डिस्क्राइब किया था एक लाइव सेल को। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस किया था। तीसरे साइंटिस्ट का नाम नहीं है। फिर तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी कैसे हुई। So the invention of the microscope and its improvement leading to the electron microscope revealed all the structural details of cell. So for now we'll study till here. तो हमने क्या क्या पढ़ा? We studied about cell. G.N. रामाचंद्रन के बारे में हमने पढ़ा। वी डेंट स्टडी उन्होंने कौन कौन सी डिस्कवरी की, बट वी हैव एन ओवरव्यू, क्योंकि मैंने कहा कि पहले सेल का चैप्टर अच्छे से पढ़िए, फिर एक्चुअली उन्होंने क्या डिस्कवर किया, यू विल गेट टू नो दैट हाँ ये चीज अब मुझे समझ में आ रही है कि ये वर्ड का मतलब क्या है। आई जस्ट से दैट ही हैज इन्वेंटेड अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग एंड यू डोंट नो अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग, देन यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दैट थिंग ऑल अबाउट। सो वी हैव स्टडीड अबाउट दैट। सेल क्या होता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। चैप्टर के नाम में है द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, एक पहली यूनिट जो कि ऑर्गेनिज्म को क्रिएट करती है। सेकेंडली वी स्टडीड अबाउट ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है। सेल से सेल बनता है पहले, फिर टिश्यू बनता है, टिश्यू के बाद ऑर्गन्स बनती हैं, ऑर्गन्स के बाद ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम के बाद ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तीसरा वी स्टडीड कि हाँ एक भी ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है और वो बेसिक परफॉर्म करता है फंक्शंस जो लाइफ के, दैट इट इज इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टिंग एंड इट कैन परफॉर्म द बेसिक फंक्शंस ऑफ लाइफ। हमने लास्टली पढ़ा दो साइंटिस्ट के बारे में। पहले थे एंटनी वॉन लीवेनहुक, जिन्होंने फर्स्ट डिस्क्राइब किया था लाइफ सेल को
जो सेकेंड साइंटिस्ट थे वो हमारे थे रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने हमें न्यूक्लियस, अनियन पील को लिया था और उसमें हमें न्यूक्लियस दिखाया था। लेटर जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई तब ये चीजें और क्लियर होने लग गई। और रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बताया था कि जो सेल हमारा वो हनी कोम लाइक स्ट्रक्चर की तरह है, और वो एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर की तरह लगता है। आप अगर ध्यान से हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर को देखें तो वो एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, जैसे मैंने ये वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है वैसे ही होता है। उसको अरेंज करते हैं तो इसमें कोई स्पेस नहीं होती है बीच में, इंटरसेल्यूलर इंटरडिपेंडेंट अपैरेटस की तरह ये शो होता है। और ये इस एक यूनिट को हम क्या कह रहे हैं, सेल कह रहे हैं। So I hope this much is very much clear. And next, we'll study about the theory of cell, who discovered cell, what is cell all about, types of cell, and many more interesting facts. So till then, revise this and stay happy, stay safe.